friends in life, having a beautiful team, ये सब चीजें मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ मटेरियल चीजों के साथ नहीं रुकती है. जो मोस्ट पीपल थिंक manifesting is having a posh car, having a posh house, having the latest iPhone. Of course, those material things are important, but along with that, having meaningful friends in your life, जो आपको support करते हैं, जो आपको judge नहीं करते, having a lot of allowance from friends who say that whatever you do, Ashwini, I am with you, I trust you, I support you, to having wonderful people who work with you as a part of your team, having good health, having a good sleep, having a good gut health, having a good emotional and mental health, ये सारी चीजें हैं जो हम मैनिफेस्टेशन के द्वारा हमारी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सच. और मेरी जर्नी भी ऑलमोस्ट तभी शुरू हुई. मुझे एक किताब मिली जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. इट्स बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. एंड मैंने उस किताब को पढ़ा और रख दिया. मुझे लगा ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो सोचूं मेरा सबकॉन्शियस में कुछ चल रहा होता है वो सोचूं. बट देन कुछ टाइम बाद मैंने उसका ऑडियो बुक सुना ऑन यूट्यूब, एंड वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आवाज में ही था. इट वाज इन हिज वॉइस ओनली. एंड देन समथिंग हैपेंड टू मी. आई जस्ट स्टार्टेड रिलेटिंग थिंग्स दैट फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न आई वाज ऑलवेज मैनिफेस्टिंग. And it was always coming true. I manifested my husband. I manifested my child. I manifested me being chartered accountant, despite of the fact that I am a very vague, dreamy person. But in a strong professional world of chartered accountants, I am there, sitting with them, competing with them, and it's such a healthy feeling. बार लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन मतलब एक्टिवली चीजें करना, पर बिकॉज यू मेंशन द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, बहुत सुंदर बुक है, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट बुक्स टू. और उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन है, वो बहुत पावरफुल है. और हम अभी ऐसी रियलिटी में रह रहे हैं ना नीलम, जहाँ पे लोगों को लगता है 10% कॉन्शियस माइंड जो करता है वही सब कुछ है. वही सब कुछ है, वही सच है. यस, पर 90% सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं. बिकॉज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो विजडम नहीं मिला है कि सबकॉन्शियस माइंड को टैप करो, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. और जिन लोगों ने आज तक जिंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ मैनिफेस्ट किया है, सिर्फ 5% लोग हैं जिन्होंने वो चीजें टैप करी है और जिन्होंने वो एम्पायर क्रिएट किया है. क्योंकि उनको पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन की पावर क्या है, क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं. लेकिन हम सोचते हैं कि थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल. बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है. हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. और हम भगवान को बोलते हैं ये सब भगवान के हाथ में है, ये सब भगवान की मर्जी है, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ. सरेंडर इज अ डिफरेंट थिंग. व्हेन वी सरेंडर टू यूनिवर्स और भगवान. Hello everyone, welcome to Unicorn Cafe, and this is a magical place where I sit with my spiritual guide and my dear Dr. Ashwini Chube to discuss various topics. And these topics can be from anything from manifestation to how to get success in life to how to balance my life. Everything I share with my guide and guru, and just thought that let's put it for everyone, and this is how we have arrived here. Thank you so much, Dr. Ashwini Chube, for being with us, and welcome to the show. Thank you. Thank you, Neelam. This is so amazing. First of all, thank you for the warm welcome, and it's always great having these conversations with you.
So I still remember it was early January, and me and Neelam, we've always spoken to each other. We've had those long conversations. And one thing I can say is every conversation I and Neelam have with each other, it just heals both of us. True. And true, right? And earlier this January, we were just speaking, and Neelam said, Ashu, let's do these. There is so much amazing wisdom which just flows every time we are talking. So, how about doing this as a podcast? Because Neelu, if you remember, I call Neelam Neelu and she calls me Ashu. That's how we address each other, like being soul sisters. So, me and Neelam, we both started something called as the Wisdom Mocktail in during the COVID lockdown, and that was the time where we used to share these conversations and take it to more people. That time it used to be on phone calls, and then we later discovered there are better ways of doing these conversations and recording. But the reason we decided to do this, because what if the lovely wisdom which flows through us, and I know this wisdom flows through us because of the blessings of all the mentors with whom I have learned with, and also the divine energies which are working with us all the time. And then Neelu was like, chalo Ashwini, let's do this as a podcast. Abhi shuruaat to kar lete hain. And hence we thought in this new year, which begins on Gudi Padwa, we decided to launch this Unicorn Cafe once again as the next season of our podcasts. And here we are in this magical podcast with the amazing Neelam and me, Dr. Ashwini. And yes, there are going to be a lot of discussions, lot of topics. But let's hear from Neelam. What is it that we would like to do today? Neelu, what do you think we should talk about today? So, there's one thing, and I started my journey with you on this topic only because this is something which I am learning through the years and very close to my heart. The topic is manifestation. So, it's a Wow. wide topic. It's a Yes. diverse topic. There are n number of videos available. There are n number of podcasts available. I can read many books, but the way you explain it is amazing. And let's start with the golden rules of manifestation. Yay. And yeah, because I've been following these rules, and there has been a tremendous transformation in my journey. Yeah. I would love to share my journey and also these rules with all of us. So let's begin with the manifestation and the golden Beautiful. rules of manifestation. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. This is my favorite topic too. In Amazing. fact, yeah, in fact, Neelam, when in 2010, how did I begin my journey? I read the book The Secret. It was in the 2009 Diwali time where I was in a corporate job. I was working with Morgan Stanley. And I still remember there was this book, The Secret, in my library, in my house library, because the book actually belonged to my sister Anaga, whom also a lot of lot of people know as someone who is a part of our team Unicorn. And she had gotten that book and she got married. And when she moved after marriage, the book was still lying in my parents' home where I was living. And I used to see that book every day because it was in the bedroom. I used to see that book every day, but I had never read it. And one day something happened and I just picked that book. And I realized that that book talks of something called as manifestation. So I just picked up that book. And after I picked up that book, I did not keep it. I read it the whole night. I remember reading it till 4:30 a.m. in the morning. Wow. Yeah, and my dad woke up in the middle of the, not middle of the night, early morning, and he saw light in my room, and he was like, "What are you doing?" I said, "I'm reading." It's He magical. smiled, and he smiled, and he said, "हाँ बिल्कुल मुझ पे गई है," because my dad and my both my parents were voracious readers, and I said, "I just couldn't keep this book. I just finished reading the book till morning. I slept after that. I went to work."
and I felt it was the first upgrade which I received in my life, because till then I was living as if life is happening to me. But after reading the book The Secret, I realized that we create our life by the power of the thoughts. True. And then I started sharing it with my colleagues, all my friends at work. I started telling them that, this beautiful book. Then I got the CD of the Secret. And then daily I used to share quotes on emails to all my friends about The Secret, because there was a website on which secret quotes was available. And I used to daily, in the morning, I used to wake up and copy paste those thoughts and share it with email to everyone I knew. And I happened to read an article where someone said that, um, what do you love to do the most can be your profession. And I thought, wow, I love to share something about the secret and the manifestation. So maybe I should do that for a living. But that was a very faint thought. And that time, something like a life coach or, the It concept didn't of, exist at it that did time. not exist, right? Manifestation coach, life coach, ऐसे कुछ भी था नहीं. बस आप किसी को मोटिवेट करो, उतना ही ऑब्जेक्टिव था. Right? And by the way, Neelam, by the way, all of you are listening to me and Neelam, we decided to make this in Hindi and English. तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज करेंगे इसमें, क्योंकि वी वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल जो ये सुने, इनकी लाइफ चेंज हो. सो Yes. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी विद द मैनिफेस्टेशन. एंड यर वी आर इन 2025. सो इमेजिन ना नीलम, हम लोगों ने शुरुआत की 2009 में, शुरुआत हो गई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड टुडे इन 2025, which is 16 years later, oh my God, that's a huge time. We are actually here using the tools of manifestation. और कितने लोग हैं जिनकी लाइफ ये मैनिफेस्टेशन की वजह से कंप्लीटली चेंज हो गई है. आई एम द फर्स्ट एग्जाम्पल, Absolutely. क्योंकि मैंने लाइफ में जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था वो चीजें आज मैंने, आई हैव, आई वुड से क्रिएटेड. एंड थैंक्स टू द वंडरफुल मेंटोर्स आई मेट. सो वो मेंटोर्स का मिलना मेरे लाइफ में, वो भी एक मैजिक और मिरेकल ही था, क्योंकि ये चीजें मैंने सीखी खुद की एक्सपीरियंस से. बट आई वॉज ऑलवेज हेल्ड बाय द वंडरफुल मेंटोर्स, एंड आई जस्ट बिगेन विथ माई जर्नी देन. एंड आई मेट माई फर्स्ट मेंटोर डॉक्टर प्राची गावकर, जिन्होंने मुझे पावर ऑफ माइंड, और शी इज ऑल्सो माई रेकी ग्रैंड मास्टर एंड आई कंसिडर एज माई गुरु. तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से माइंड पावर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, इट्स गॉन स्ट्रेट इन योर, एंड इट कंटिन्यूज टू स्टे. So, yes, that was the start of manifestation as my journey. And for all of the people who don't know what manifestation is, या फिर जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, I would like to say that manifestation is something you desire and something you actually experience in your life. To be very, very honest, हम चाहते हैं कि हम एक सुंदर से घर में रहे, और हम उस कैसा होना चाहिए सपनों की दुनिया में उस घर को सजा देते हैं. और मे बी इन 3 years 5 years आप ये रियलाइज करते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी बाय कर दी है, या फिर आपके स्पाउस ने प्रॉपर्टी बाय कर दी, आपके पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी बाय करी है, इवन बेटर आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, और आपको पता चलता है कि आपने मैनिफेस्ट किया. सो मैनिफेस्टेशन इज ब्रिंगिंग इन टू रियलिटी ऑल योर ड्रीम्स, विशेस एंड बिल्कुल डिजायर्स. सही. A बिल्कुल very सही. simple way of, because people ask me manifestation क्या है. एंड फॉर मी मैनिफेस्टेशन इज, जो चीज हम चाहते हैं उसे हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. वो छोटी सी छोटी चीज हो, जैसे मुझे मेरी फ्रेंड को आज शाम को आई वांट टू गो आउट फॉर कॉफी विथ हर, और मेरे थॉट्स में ये आता है दैट मे बी आई शुड कॉल माई फ्रेंड अप, दैट आफ्टर ऑफिस, आफ्टर वर्क, वी बोथ विल गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी इन अ न्यू कैफे विच इज ओपन. और दोपहर के बाद मेरी फ्रेंड मुझे फोन करती है, अश्विनी व्हाट आर यू डूइंग टुडे इवनिंग. नथिंग. चलो ना आज मिलते हैं, लेट्स हैव दिस कप ऑफ कॉफी, एंड देयर इज सो मच टू कैच अप विथ.
that is manifestation. That could be the smallest thing to having a property, having a car, um, getting a promotion, getting fitter, having being able to, जैसे मैं कहती हूँ, I have always attracted good mentors, whether they are fitness coaches, whether they are life coaches, जिन्होंने मुझे, having such people in my life और having friends in life, having a beautiful team, ये सब चीजें मैनिफेस्टेशन है. क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ मटेरियल चीजों के साथ नहीं रुकती है, जो मोस्ट पीपल थिंक manifesting is having a posh car, having a posh house, having the latest iPhone. Of course, those material things are important, but along with that, having meaningful friends in your life, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको जज नहीं करते, having a lot of allowance from friends who say that whatever you do, Ashwini, I am with you. I trust you, I support you. To having wonderful people who work with you as a part of your team, having good health, having a good sleep, having a good gut health, having a good emotional and mental health, ये सारी चीजें हैं जो हम मैनिफेस्टेशन के द्वारा हमारी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं. ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सच। और मेरी जर्नी भी ऑलमोस्ट तभी शुरू हुई। मुझे एक किताब मिली जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। Yes. इट्स बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड मैंने उस किताब को पढ़ा और रख दिया। मुझे लगा ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो सोचूं, मेरा सबकॉन्शियस में कुछ चल रहा होता है वो सोचूं। और बट देन कुछ टाइम बाद मैंने उसका ऑडियो बुक सुना ऑन Hmm. यूट्यूब, एंड वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आवाज में ही था। इट वाज इन हिज वॉइस ओनली। एंड देन समथिंग हैपेंड टू मी। आई जस्ट started relating things that from the time I was born, I was always manifesting, and it was always coming true. I manifested my husband, I manifested my child, I manifested me being chartered accountant, despite of the fact that I am a very vague, dreamy person. But in a strong professional world of chartered accountants, I am there, sitting with Yes. them, competing with them. And it's such a healthy feeling, being with them and understanding all those complex concepts of finance and Yes. accounting. I could do that. Somehow I was manifesting all of it. I manifested my job with EY. In fact, one of my friends said that, Neelam, I was working in a bank, and he said, Neelam, you should be in Big Four. And usne bola, you should be in Big Four like Ernst and Young. And he could not pronounce Ernst and Young. He said, आपको अर्नेस्ट एंड यंग में होना चाहिए। तो मैंने बोला वो अर्नेस्ट एंड यंग होता है। उसने बोला हाँ, आपको वहां होना चाहिए, आप में इतना नॉलेज है। एंड उसने मुझे ये अगस्त में कहा, अगस्त की बिगनिंग में कहा। ही वॉज माई राखी ब्रदर, आई यूज टू टाई राखी ऑन हिज हैंड। एंड वेन ही ब्लेस मी ऑन दैट राखी डे, on September 4th, I had joined EY. So that's the power of manifestation, and that's the power of vibration, because I really truly felt from my heart that yes, Yeah. that's the position I want and I need. And मेरा मुझे कभी भी उस बैंक से इतनी जल्दी रिलीविंग नहीं मिलता, बट somehow my boss changed and he relieved me. सब कुछ Wow. ऐसे हो गया जैसे एक ड्रीम में होता है। I just wanted to join the company in September, in a month's time, and it really happened. So yes, everything happens when we manifest, but we don't know when we are manifesting or not, because sometimes we think that we are manifesting but we are Yes. not applying the right vibration or Correct. techniques. Correct. And sometimes we are manifesting but we don't realize that we are actually manifesting. जैसे कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं, ओ इससे तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, ये काम करने से बहुत स्ट्रेस होगा ना, स्ट्रेस Correct. होगा ना, एंड देन वी मैनिफेस्ट स्ट्रेस इन आवर लाइफ, Yeah. बट So वी डोंट रियलाइज। Neelam. Neelam, what you said is perfect and very beautifully put. Either we manifest things consciously or we allow things to manifest subconsciously. एग्जैक्टली। So बहुत बार लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन मतलब एक्टिवली चीजें करना, पर बिकॉज यू मेंशन द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, बहुत सुंदर बुक है, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट बुक्स टू. और उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन है,
वो बहुत पावरफुल है। और एग्जैक्ट, हम अभी ऐसी रियलिटी में रह रहे हैं ना नीलम, जहाँ पे लोगों को लगता है 10% कॉन्शियस माइंड जो करता है वही सब कुछ है। वही सब कुछ है, वही सच है। यस, पर 90% सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो विजडम नहीं मिला है कि सबकॉन्शियस माइंड को टैप करो, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है हमारी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रू। और जिन लोगों ने आज तक जिंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ मैनिफेस्ट किया है, सिर्फ 5% लोग हैं जिन्होंने वो चीजें टैप करी है और जिन्होंने वो एम्पायर क्रिएट किया है। क्योंकि उनको पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन मन की पावर क्या है, क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल। बिल्कुल, क्यों? ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जब हम ये सोचते हैं कि यस, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और यस, हम भगवान को बोलते हैं ये सब भगवान के हाथ में है, ये सब भगवान की मर्जी है, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ। सरेंडर इज अ डिफरेंट थिंग। व्हेन वी यस, सरेंडर टू यूनिवर्स और भगवान जी और गॉड और जो भी सुपर पावर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज लाइक गेटिंग डिटैच फ्रॉम द आउटकम। बट यस, वी ऑलवेज थिंक दैट नहीं, वो मर्जी भी उनकी थी, नहीं वो हमने मैनिफेस्ट किया था, हमने यस, कहीं ना कहीं उस जिंदगी को मैनिफेस्ट किया है, तो आज हमें वो जीना पड़ रहा है। वो यस। मोमेंट हमें इसीलिए आया है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको ना चाहते हुए भी उसको मैनिफेस्ट किया। सो वी इधर अलाउ, हम अलाउ करते हैं उस चीज को होने, या फिर हम कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं। और नीलम, तो जब कमिंग बैक टू माय जर्नी विद द बुक द सीक्रेट, तो मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे मैं मेरे प्रीवियस जॉब के लिए मुझे दूर ट्रेन से जाना पड़ता था, तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे घर के नियर बाय जॉब चाहिए। एंड which is when I attracted my next job, जहाँ पे me and Neelam we met together and we connected as colleagues first and then became friends and then became soul family. तो वो जॉब मेरे ऑफिस was very closer by to my house. So I said that yes, I attracted a job closer to my house. और बहुत सारी चीजें उसके बाद मेरे लाइफ में मैंने एक के बाद एक अट्रैक्ट करना शुरू किया। और वो 2009 के अराउंड से मैं एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से जा रही थी, बिकॉज इमोशनली आई वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर हु आई एम। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं लाइफ में मुझे क्या करना है। एक तरीके का वो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन मेरी शुरू हुई थी, मेरी विच आई से माई स्पिरिचुअल जर्नी हैड स्टार्टेड। पर मैंने एक चीज रियलाइज कर दी थी कि मैंने 75 to 80% चीजें अट्रैक्ट कर दी थी, पर हम्म। मैंने 20 to 25% चीजें मेरे लाइफ में नहीं हो रही थी, विच मेड मी गो डीपर इन टू माई जर्नी। जिसके बाद ऑफ कोर्स मैं मेरे टीचर्स से मिली, जिन्होंने मुझे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बता दी, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ शेयर किया। और मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर किताब है, इट इज। सीक्रेट, रोंडा बर्न की, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग है। हम्म। कुछ तो है, क्योंकि वो बुक आस्क बिलीव रिसीव के बारे में बोलती है, पर क्या सिर्फ आस्क बिलीव और रिसीव है? एंड व्हेन आई वेंट डीपर इनटू इट, आई रियलाइज दैट बिलीव में भी काफी सारी चीजें हैं, आस्क में भी काफी सारी चीजें हैं, और रिसीव में भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। और आई थिंक that began my research on the law of attraction, on the law of manifestation. I studied under various mentors. मैं आज भी स्टडी कर रही हूँ। मैं बोलती हूँ कि मेरी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं बस पढ़ाई करती रहती हूँ। आई कीप ऑन पॉलिशिंग माई स्किल्स सो दैट एज अ टीचर, एज अ कोच, आई कैन empower more people. So I recently learned from a few more mentors. पर मेरी जो लास्ट 16 साल की या 15 साल की जर्नी है, उसको मैंने मैनिफेस्टेशन को एक कल्मिनेट कर दिया इनटू समथिंग व्हाट वी कॉल एज कैट्स टेक्निक। यस, एंड यस, यस। मैं जानती हूँ कैट्स टेक्निक, एंड सारे ऑडियंस को लगेगा व्हाट इज दिस कैट्स टेक्निक, इज इट अबाउट द कैट? बिकॉज कैट्स। because because we all are pet lovers, most of us are यस, pet lovers, and especially cats, they are the cutest, adorable अडोरेबल, राइट? beings. Yeah, but
No, it is not cats, the animal. It is about a very beautiful, very powerful technique which Ashwini has taught us as well. Because as many of you might know, that Ashwini is is a wonderful coach, and I have done many trainings with her, including the training of the trainer, and where this, in the manifestation section, this came as a very powerful tool to me. And since then I've been applying it, and it has given me tremendous result. इससे बहुत powerful result सामने आए हैं. And definitely, Ashu, let's talk about this today. लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो नीलम, कैसे होता है, लोग मुझे बहुत बहुत बार पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब विशफुल थिंकिंग होता है क्या. क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मतलब विशफुल थिंकिंग. वो उसका 0.1% है. यस, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट, राइट. Yeah. और हमारे इंडियन सोसाइटी में एक ख्याली पुलाव नाम की कंसेप्ट है जो मुझे हाँ. काफी इंटरेस्टिंग लगती है. क्योंकि बहुत बार स्पेशली इस पाथ पे जाने से पहले, बिफोर मीटिंग माय टीचर्स एंड मेंटोर्स, सी आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी क्रिएटिव, वेरी विजुअल, very imaginative person. I think so are you, Neelam, and so are most of us who believe in the power of our mind. लेकिन एक समय ऐसा था कि बहुत बार फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, कोलीग्स, क्लासमेट्स, ये आपके इमेजिनेटिव एनर्जी का बहुत मजाक उड़ाते थे. कि आप बहुत इमेजिन करते हो, ये ख्याली पुलाव, ये कुछ नहीं होता है, कम बैक टू रियलिटी. तो बहुत बार मुझे, जब मैंने एज अ कोच में मेरे प्रोफेशन में शुरुआत कर दी थी, मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता है अश्विनी, विशफुल थिंकिंग होता है, कुछ नहीं होता है. एंड व्हेन आई वाज सिटिंग, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज sitting in with my teacher in her office when I was learning my one of my first learnings with the law of attraction. तो मैंने डॉक्टर प्राची, जो मेरे मेंटोर है, उनको पूछा था कि आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, मुझे पता है कि ये वर्क करता है, पर फिर लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, और आप मुझे प्लीज बताओ कि क्या सही है, ये होता है कि नहीं होता है. And like a very wise guide, she just smiled at me. She said, as you believe in it, right? Your belief will make it a reality. For those people, because they don't believe in the power of mind, उनके लिए नहीं वर्क होगा. तो आज के बाद अपने बिलीफ को लोगों के क्रिटिसिज्म से ज्यादा अपने बिलीफ पर विश्वास रखो. एंड वी विल वॉक यू थ्रू द टूल्स एंड टेक्निक्स. एंड ऑफ कोर्स आई स्टडीड विथ हर, आई गॉट माय डाउट्स क्लियर्ड. और that was the time I realized that A, manifestation works. B, manifestation is just more than a wishful thinking. Like Neelam said, it is wishful thinking is only 0.00001% of it. Basically, manifestation is about aligning your energy with your desires. Once you have aligned your energy with your desires, all that things which are in your dream, it comes into reality. And this is not wishful thinking, it is science, because सबकॉन्शियस माइंड का साइंस है. सो आज आई एम श्योर जो हमें सुन रहे हैं इस समय, मैं पहली चीज तो बोल सकती हूँ, ये द सीक्रेट बुक बाय रोंडा बर्न आप पढ़ लीजिए, और दूसरी बुक पढ़ लीजिए, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. ये दोनों बुक्स जब आप पढ़ेंगे, मैं कहूंगी ये आपकी एलिमेंट्री ट्रेनिंग होगी मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि ये दोनों किताबें पढ़ना ही बहुत हीलिंग एक्सपीरियंस है. और ऑफ कोर्स आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप यहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हो, आप आपके टेक अवेज कर सकते हो जितने भी है. बट कमिंग बैक टू इट, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जस्ट मोर देन विशफुल थिंकिंग नहीं है. आस्क, बिलीव, रिसीव आर द ब्रॉड स्टेप्स टू इट. पर कैट्स टेक्निक, जो अभी जिस बारे में नीलम ने बात करी, व्हाट इज कैट्स टेक्निक? कैट्स इज एन एक्रोनिम और an abbreviation for the steps of manifestation. The first step is clarity. The second step is choice. The third step is actually asking. The fourth step is aligning yourself. Yes. The next is trust. And finally, it is surrender. Surrender. CAT stands for all of this. तो ये क्या है और ये हम कैसे यूज करते हैं? तो द सीक्रेट टॉक्स अबाउट आस्क, राइट. लेकिन आस्क करने से पहले there are two more steps. First is having absolute clarity in what is it that you want to ask. अगर आप क्लियर ही नहीं हो, जो मोस्ट पीपल व्हेन दे कम फॉर मैनिफेस्टेशन क्लासेस,
They say, Ashwini, I'm not clear of what I want in life. And that is because they have been so much lost in the matrix, just running into the survival mode. जो इंसान survival mode में होता है, survival is making sure you are making enough money for the month, paying off your bills. सुबह उठो, एक रोबोट की तरह आप ऑफिस जाते हो, शाम को आप आते हो, आपको समय नहीं मिलता टू थिंक ऑफ what you want, and you just become a victim of what is happening around you. So there are so many people in that, and there are two reasons why they do not have the clarity. They do not have the time to think about themselves or what they want in life, and secondly they believe it's not possible. वो सोचते हैं क्या होगा यार अगर हम सोचे भी कि हमें क्या चाहिए, मिलने थोड़े वाला है। यस। जब वो ऐसे यस। सोचते हैं तो उनको क्लैरिटी नहीं रहती कि उनको क्या चाहिए। दे गो बैक टू देयर लाइफ एंड दे स्टार्ट लिविंग इन कि हम लाइफ के विक्टिम्स हैं, जो हमारे साथ हो रहा है अब इतने खुश भी नहीं है, एंड थिंग्स आर जस्ट गोइंग ऑन। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल अब्यूज, mental trauma. Let's not get, because that's a separate topic here. But even daily going to place of work, and if people are not behaving well with you, if your family members are unkind to you, if people are constantly criticizing you, आप वो पॉइंट पे नहीं सोचेंगे कि मुझे लाइफ में क्या क्रिएट करना है। आपको पहले हील होना है उस चीज से। So यस। these are the reasons why people do not have clarity in what they want. So the first step, even before we go in the ask, right, is getting clarity. So clarity is Absolutely. about being crystal clear what I want. Because Mhm. see, this universe, or I also call it the power of subconscious mind. We also call it God. We call that power in the world, the whole power which is creating everything. But for our easy reference, we will call it universe. So the universe responds specifically to what you're asking for. And when you are clear, it just adds more to it. So, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ क्लैरिटी के लिए कि समझो नीलम लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई। और समझो मैं दिल्ली जा रही हूँ नीलम को मिलने, और मैं नीलम को कहती हूँ, नीलम चलो शॉपिंग जाना है मुझे, मैंने बहुत सुना है दिल्ली की शॉपिंग के बारे में, चलो शॉपिंग चले। तो नीलम मुझे पहले पूछेगी, पर आशु तुम क्या लेना चाहती हो? वेस्टर्न क्लोथ्स, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, साड़ी, ऑफिस वेयर, जिम वेयर? तो अगर मैं नीलम को बोलूं अरे कुछ भी ले लो, हाउ विल शी नहीं। नो वेयर शी हैज टू टेक मी Not आउट फॉर how. शॉपिंग? Yes. If I am the राइट, universe, I will get confused. कि what Ashwini wants. उसको एग्जैक्टली। चाहिए क्या? लेकिन मैं अगर बोलूं कि नीलम मुझे ना वो अच्छे वाले सलवार सूट के मटेरियल्स लेने हैं जिसके लिए दिल्ली फेमस है, तो नीलम बोलेगी चलो मैं तुम्हें वो जगह ले चलती हूँ जहाँ पे तुम्हें सलवार सूट के बहुत अच्छे ड्रेस मटेरियल्स मिले, ताकि तुम वो शॉपिंग कर सको। सो यूनिवर्स बिल्कुल वैसा है, एंड आई थिंक एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मे बी यूनिवर्स इज लिसनिंग, और वेरी सून आई विल कम टू दिल्ली टू डू ड्रेस मटेरियल शॉपिंग विथ यू। Anyway, the analogy was, and the love was for that. The universe is also like how a friend is. हम जब तक यूनिवर्स को ये नहीं कहते कि हमें स्पेसिफिकली क्या चाहिए, यूनिवर्स हमें वो नहीं देगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज हैविंग एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन Clarity. व्हाट यू वांट। डिफाइन योर डिजायर्स विथ प्रेसिजन एंड इंटेंशन। आपके डिजायर्स को एकदम क्लैरिटी से यूनिवर्स के सामने पेश करना। यस। सो जितने हम क्लैरिटी के साथ उस चीज को यूनिवर्स के सामने पेश करते हैं, उतने क्लैरिटी के साथ, उतने स्पीड के साथ यूनिवर्स हमारे साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। सो द Very वेरी फर्स्ट स्टेप इज good. क्लैरिटी। Clarity. वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज चॉइस। अभी आप कहोगे चॉइस की क्या बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं आई डोंट हैव अ चॉइस। नाउ Hmm. अगेन आई टेल देम द सेम थिंग, This is the biggest roadblock in दिस their इज द बिगेस्ट रोड manifestation ब्लॉक। journey. क्योंकि लोग कहते हैं ये सब तो ठीक है जो आप बोल रहे हो अश्विनी, लेकिन व्हाट इफ यू डोंट हैव अ चॉइस? माय आंसर इज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस
either you're consciously choosing it या फिर you are subconsciously allowing others to choose for you, right? गैरी डगलस जो एक्सेस कॉन्शियसनेस के फाउंडर है, हम काफी एक्सेस कॉन्शियसनेस पे पहले बात कर चुके हैं और आगे जाके भी हम करने वाले ही है। दैट्स माय फेवरेट मोडालिटी। गैरी डगलस कहते हैं, जो एक्सेस के फाउंडर है, ही इज जेंटलमैन फ्रॉम अमेरिका एंड ही इज अबाउट 80, और उन्होंने ये बहुत सुंदर बॉडी ऑफ वर्क एक्सेस कॉन्शियसनेस बनाई है। तो गैरी डगलस कहते हैं अ चॉइस क्रिएट्स, बिकॉज चॉइस, वंस यू चूज पॉसिबिलिटीज ओपन अप। पर क्या होता है, हम हमें लगता है हमें चॉइस नहीं है। तो हम्म। गैरी डगलस ऑल्सो सेज दैट वी हैव क्रिएटेड अ चॉइसलेस यूनिवर्स। हमने ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें हम सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि हम कठपुतलियां है और हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है और हमें चॉइस नहीं है। तो हम चॉइस को एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, और बिकॉज हम चॉइस को एलिमिनेट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। सो आई ऑलवेज टेल पीपल, सो आई नो अ लेडी, फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ शी वॉज, उनको लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए थे, और शी कनेक्टेड टू मी अ कपल ऑफ टाइम्स, और उन्होंने बोला अश्विनी मैं आना चाहती हूँ लेकिन ये चीज हो रही है। देन शी सेड ओके, मैं आना चाहती हूँ लेकिन वो चीज हो रही है, मेरे बेटे की एग्जाम्स है, मेरी मदर इन लॉ का नी का ऑपरेशन हो रहा है। um, तो मैंने सोचा मैं उसके बाद आऊंगी। सो मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा, आप क्या चूज करते हो आपकी लाइफ में? तो बोली नहीं, मुझे हम्म। एक्चुअली ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि क्या है ना, बेटे के एग्जाम से मदर इन लॉ को हेल्प करना है। मैंने बोला लेकिन आप क्या चाहते हो? हाँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली। क्या आप आप रीजंस दे रहे हो बट आपको क्या चाहिए आपको नहीं पता। सो शी वॉज नॉट नोइंग एंड शी सेड कि मुझे चॉइस नहीं है, क्योंकि मुझे उनको, मैंने बोला देखो आप चॉइस कर रहे हो, आप आपकी मदर इन लॉ को हेल्प कर सकते हो, आप आपके बेटे को हेल्प कर सकते हो, और आप अपने आप को भी हेल्प कर सकते हो। यस, लेकिन आपने एब्सोल्युटली। अपने आप को एलिमिनेट कर दिया है इस सब में, और कल जाके वो ठीक हो जाएंगे। आपका बेटा बड़ा होके स्कूल से, ही विल स्टार्ट हिज ओन लाइफ एंड यू विल स्टिल नॉट चूज यू। सो शी सेड बट मुझे चॉइस नहीं है। मैंने बोला आपको ऑफ कोर्स चॉइस है, इस समय आप वो चॉइस यूज नहीं कर रहे हैं। And she said it just opened my eyes. After that, she started coming to me for access bars. She यस। started doing coaching sessions. And then she turned her life 360 degrees. Right now, she is a contribution to her son's life. She is उन्होंने एक वाओ। फुल टाइम हेल्प भी रखी है जो उनको हेल्प करती है। हर मदर इन लॉ इज हैप्पी, हर सन इज हैप्पी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शी इज हैप्पी। बट इतने दिनों क्या हो रहा था, वो खुद हैप्पी नहीं थी और उन्होंने खुद को चूज नहीं किया था। सो मैनिफेस्ट, नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, पर चॉइस कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। अगर आप चाहते हैं, जैसे नीलम, आपने अर्नस्ट एंड यंग का जब जॉब, आपको पहले क्लैरिटी आई कि आपको बिग फोर में जाना है, एंड देन यू चोज टू अप्लाई टू दैट कंपनी, यस। राइट? यस। यू चोज एंड दैट अपॉर्चुनिटी केम योर वे। Just Ernst and Young struck in my mind so much with so much of clarity that I always thought of this with very happy feeling that okay, Ernst and Young में जॉब लगनी चाहिए, अब तो Ernst and Young ही जाना है। थॉट्स लाइक दैट। उसके अलावा मुझे कोई और बिग फोर का भी थॉट नहीं आया। आई डिडंट थिंक अबाउट डेलॉयट, आई डिडंट या थिंक अबाउट PwC, आई या जस्ट थॉट ऑफ Ernst and Young only. And यस, within 2-3 days I got a call that we are starting a new center in India and we would like to hire people, especially chartered accountants. Your सी, profile seems good. And within a week interview happened, and because they wanted an early joining, I just जॉइनिंग, joined. This is how it दिस इज it हाउ happened मैजिक इज just क्रिएटेड। yes, पर आपने वो चॉइस करी और आपको क्लैरिटी आई, तो उसको, exactly. सो देर इज फर्स्ट देर इज क्लैरिटी, देन देर इज चॉइस, एंड देन वी एक्चुअली गो टू द स्टेप व्हाट वी कॉल एज एन आस्क। नाउ आस्क Hmm. इज वी स्टेट आवर इंटेंशन टू द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स को बताते हैं कि हम इस चीज को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे तो आपने कहा कि मुझे मेरा ऑफिस घर के पास चाहिए। यस, You clearly told universe that this is what you want. यस, और मैंने ये नहीं सोचा कि ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो नहीं हाँ, होने वाला, उसके क्योंकि इफ्स और काफी, बट्स को ध्यान नहीं देना यस, है। क्योंकि ना काफी सारे लोग नीलम इफ्स एंड बट्स में लग जाते और कहते हैं कि हो कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है, ये आसान तो नहीं है। ऑलरेडी व्हेन पीपल कम फॉर जॉब्स, अभी जैसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं, दे आस्क अस टू हेल्प देम विथ रेकी,
टू क्रैक इंटरव्यूज और दे आर जॉबलेस एंड दे वांट टू अट्रैक्ट अ न्यू जॉब. तो मेरे पास और एक, देयर वाज अनदर लेडी हु हैड कम टू मी एंड शी सेड जॉब्स, शी हैड लॉस्ट हर जॉब एंड सब फाइनेंशियल प्रेशर उनके हस्बैंड पे आ रहा था. उनके दो बच्चे हैं जिनको स्टडीज एंड ऑल के लिए ऑब्वियसली दे वांटेड बेटर जॉब सो दैट शी कुड सपोर्ट द फैमिली. तो उसने मुझे बोला लेकिन अब तो जॉब तो नहीं मिलने वाली है, दो चीजें, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मुझे जॉब थोड़े मिलेगा. ये उन्होंने पहली चीज कही. दूसरी चीज कही कि जॉब मार्केट बहुत खराब है तो मुझे थोड़े हाँ, मिलने वाला है. ये हमारे प्री कंसीव्ड नोशन है, ये हमारे बिलीव्स है जो हमने बोरो किए हैं दूसरे लोगों से सुन सुनकर. यस. दीज आर बोरोड बिलीव्स. एंड ये बोरोड बिलीफ्स हमें उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, वो आस्क यूनिवर्स में रखने के लिए रोक देते हैं. रोक देते, राइट? तो आस्क इज वेदर यू डोंट नो हाउ इट विल कम टू यू, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट. जैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस में हम कहते हैं दैट डोंट कम टू अ कंक्लूजन, आस्क अ क्वेश्चन. सो आस्क में हम यूनिवर्स को सिर्फ बोलते हैं यूनिवर्स मुझे ये, आई रियली वुड लाइक टू क्रिएट इट, हाउ कैन आई क्रिएट दैट एंड जस्ट गिव इट टू मी. आप बस आस्क यूनिवर्स पे रख रहे हो. जैसे बोलती हूँ पूछने में क्या प्रॉब्लम है, क्या होगा पूछने से पर लोग पूछते नहीं है क्योंकि people are afraid of rejection. So one of my mentors, she recently said that the fear of rejection has made us shrink ourselves to a way that we have stopped dreaming. वेरी So, ट्रू. so one of my mentors, Pooja Puneet, she says that कि हम आस्क ही नहीं करते क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर है. हाँ, रिजेक्शन से डर 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 के हमने अपने आप को एक छोटे से पिंजरे में बंद किया है बंद किया है. and we have stopped asking. But what if you could just ask? So state your intention to the universe. Universe को कहो मुझे ये दे दो. और then this the steps of what we call as visualizations, affirmations, ये सब चीजें तभी आती है. जैसे when we did the training जिसमें नीलम आप भी हो, हमने हमारे affirmations को we started putting them, we started saying them in the morning every day. We started putting them as our screensavers. We started putting them as post-it notes on our laptops, our screens, our mirrors, in our bedrooms. सब जगह को उस affirmation से भर देते हैं. We ask the universe and we declare it. So every day I wake up and I say, oh universe, show me some magic. Universe, you know, I'm ready to receive unlimited abundance. So जब हम उस तरीके से यूनिवर्स के सामने आस्क करते हैं, हम ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को बताते हैं दैट आई एम रेडी टू रिसीव इट. सो वेदर इट इज अफर्मेशन, वेदर इट इज विजुअलाइजेशन, एंड अ लॉट ऑफ अस also believe in prayers, and I think prayers is one of the most beautiful way to ask. So every evening I sit in front of my, आई डू दैट. yes, यस. I know even you do that, and I sit in front of my temple, in front of my mandir, and I just talk to God and I tell God that, this is what I would really like to have. Show me the way. It's a very humble, simple prayer of telling God that just show me the way. So, prayer, this is we are setting the intention. And one of the best ways every month, जो प्रतिपदा रहती है, the next day after the new moon, the first day of the month, it's a beautiful day to set affirmations, to set intentions, to say affirmations, because that is the time universe is, the forces of the universes are telling you to set the intention. So this is what we call as ask. Just बेझिझक ask करो यूनिवर्स को. लिमिटेशंस में मत जाओ कि कैसे होगा, क्या होगा, अब तो नहीं हो सकता. बस पूछो, पूछ के आपको शायद मिल सकता है वो. पर आप अगर पूछेंगे ही नहीं, आप अगर बोलेंगे कि मिलने तो नहीं वाला है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को कंप्लीटली आप अपनी दुनिया से, अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर रहे हो. प्लीज डोंट डू दैट. आस्क, जस्ट यस. आस्क लाइक एज इफ अ चाइल्ड वुड आस्क, राइट? यस. कि बच्चे जब मांगते हैं, वो उनको विश्वास रहता है बच्चों कि को नहीं कैसे. पता होता कि वो क्वेश्चन कभी नहीं करते, उनको जो चाहिए वो चाहिए, एग्जैक्टली दैट्स इट. और मैं जब छोटी थी मैं बोलती थी मुझे तो पता है, मुझे भगवान जी सब देने वाले हैं. आई स्टिल रिमेम्बर, आई यूज टू टेल माई मॉम कि मैं, जब मैं, स्पेशली जब मैं छोटी थी, आई यूज टू से मॉम दैट एग्जाम्स के रिजल्ट आने के एक दिन पहले मैं बोलती थी आई विल गो एंड गणपति जी को मैं बोलूंगी कि मुझे अच्छे मार्क्स दे दो. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि अभी क्या करेंगे तुम्हारे गणपति जी, तुम तो एग्जाम लिखने के वक्त उनको जाके बताती. मुझे मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि रिजल्ट के एक दिन पहले जब मैं
इधर मेरे देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माय हाउस, गणपति जी का मंदिर है, मैं उधर जाके बोलती थी गणपति जी मुझे अच्छे मार्क्स दे दो, और मुझे अच्छे मार्क्स आते थे और मैं बोलती थी कि मैजिक हो गया। सो यू नो दैट इज द जॉय, द चाइल्ड लाइक जॉय जो हम यूनिवर्स के सामने रखते हैं। और दैट इज द पावर ऑफ आस्क, यू नो, truly the power of ask. So the first A in the CATS technique is an ask, and the next A is equally important, which again many people are not aware of, what we call as aligning. What is aligning? Aligning, yes. Align your energy with your desires. Take inspired action. Taking action is very important. When you take action, जैसे नीलम तुमने अप्लाई किया अर्नस्ट एंड यंग, वो तुम्हारे ईमेल मैंने बॉक्स में अपना सीवी बनाया. आई पुट माय सीवी ऑन सेवरल पोर्टल्स because I wanted to get the job. I didn't know that Ernst Young is hiring, but I somewhere had this thing that अगर वो hire कर रहे होंगे तो वो मुझे call करेंगे. Yes, yes. So you made your resume, you aligned your thoughts, your emotions, and your actions with the goals. You energetically put yourself in that space where you are seeking what you are seeking, and you are ready to receive it, and you are taking action. So alignment बहुत important है. Alignment का और एक level है जिसको मैं बोलती हूँ डिजर्वेबिलिटी, क्योंकि अगर हम सोचते हैं हम वो चीज डिजर्व नहीं करते, we are off alignment. No matter what it is, whether it is financial wealth, whether it is a material thing like a house, like a gadget, like a car, a holiday, or whether it is something like a job or a business, whether it is a relationship, whether it is good health, whether it is, you know, having something to eat. If we believe that I don't deserve it, हम अपने आप को alignment से बाहर निकालते हैं. और ये दिस इज अनदर कैच टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सी इन दिस पॉडकास्ट में इतनी सारी टिप्स आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट पीपल बिलीव दैट दे डोंट डिजर्व, एंड दैट्स Yes. व्हाई दे आर ऑफ अलाइनमेंट. लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम ये डिजर्व करते हैं, फिर यू बिकम अनस्टॉपेबल. which brings me to the next step. T is for trust. So believe that what you desire is on the way. Yeah. ट्रस्ट करो यूनिवर्स को. एक सुंदर बुक के बारे में मैं बात करना चाहूंगी. गैब्रियल बर्नस्टीन ने एक बहुत सुंदर बुक लिखी है, द यूनिवर्स हैज योर बैक. At your back. और मेरी वो फेवरेट बुक बुक है ये. मेरी भी फेवरेट बुक है और हमने कितनी बार पढ़ी है ना, बुक पढ़ी क्लब है. में भी पढ़ी है. और उसके उसमें द टाइटल ऑफ द बुक इटसेल्फ सेज दैट ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू. क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ वो एक तरीके से एक अच्छा रिश्ता बना देते हैं, यू नो, जैसे किसी लव्ड वन के साथ करते हैं, जैसे हम किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर के साथ जब वो ट्रस्ट बन जाती है. To give you a very simple example, if I tell something to, let's take Neelam as friends, as you know, people who work together, who are friends, who are soul family, मैं अगर नीलम को कुछ चीज कहूँ, the Neelam is, I know she's going to do that. And similarly, if Neelam says that Ashu मेरे लिए ये करो, she trusts that I will do it for her. Now, if there is, because of the trust we have in each other, now समझो कोई और इंसान है जो I don't know them as well, they don't know me as well, we don't have that connection, and I tell them that please मैं एयरपोर्ट आ रही हूँ, आप मुझे रिसीव करने आओगे, and they don't know me enough, I will not trust them that they will come to receive me at the airport. Right? But if I trust someone like Neelam will say, हाँ आशु मैं आ जाऊंगी. I know she will come. Now that is because of the bond, the trust I have with her. Similarly, जब आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो, आपको पता है कि यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें जो आपने उनको बताई है वो आपको दे देंगे. That is the power of trust. So trust is what you believe. You believe that the thing what you asked for is on the way. Now ये ट्रस्ट जो होता है वो डाउट को Just that एलिमिनेट कर feeling देता that it has already happened. है. Absolutely. That feeling is also the trust that you put on the universe. Because Absolutely. while working with the bank, I always thought that I'm working with, I started thinking that I'm working with EY. So I bought new clothes. I changed my wardrobe that, now I'll be in Big Four. So my wardrobe should change. So I Yes. started believing that, I'm already there. Absolutely. And that's exactly how it works, right, नीलम? तो मतलब हम काफी बार हम इस
फियर और डाउट को हमसे दूर कर, फियर और डाउट की वजह से हमारे डिजायर्स को हमसे दूर हमसे दूर करते हैं। हम करते हैं। सोचते हैं कि डाउट है, हो सकता है कि नहीं। वो डाउट तभी आता है जब हम ट्रस्ट नहीं करते। पर द मोमेंट हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, यू नो, आफ्टर रीडिंग दिस बुक, मैंने यूनिवर्स के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जैसे कोई दोस्त हो। हम्म। और आज मैं यूनिवर्स को इस हद तक ट्रस्ट करती हूँ कि जब मुझे यूनिवर्स कोई चीज नहीं देते हैं जो मैंने मांग ली है, क्योंकि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आपको सब चीजें मिली। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको कोई चीजें मिलती नहीं है, लेकिन आप समझते हो कि वो आपको इसके लिए नहीं मिली है क्योंकि उससे कुछ बेटर आ रहा था आपके बेटर पास। आ रहा है। सो आई विल गिव यू दिस वेरी सिंपल एग्जांपल। लॉकडाउन के जस्ट पहले, दैट टाउन माय दिस हाउस वाज गेटिंग डन, इट वाज गेटिंग बिल्ट। तो हम टेम्पररीली दूसरे घर में रह रहे थे, हम्म। और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था जहाँ पे हम रह रहे थे। और मेरे इस घर को अ, होने में इट वाज ऑलमोस्ट अ लिटिल, 1 साल होना था कि मेरा पूरी पूरी तरह से हमारा खुद का जो घर है वो बिल्ड हो रहा था। तो उस समय हमने एक जगह पे एक घर देखा था। बहुत सुंदर घर था। इट वाज ऑन अ वेरी हाई राइज, इट वाज ऑन द 21st फ्लोर, जहाँ से ईस्ट का सनराइज हमें दिखता था। पर प्रॉब्लम वो थी कि वो घर बहुत छोटा था, एंड मी एंड माई फैमिली वी ऑलवेज बीन यूज टू लिविंग इन लार्ज स्पेसेस। लेकिन हमने सोचा चलो अच्छा घर मिल रहा है, इट वॉज अ गुड डील, किसी पहचान के थ्रू आया था। सो हमने ऑलमोस्ट वो उस ऑफर के लिए हाँ बोला, एंड वी वर रेडी टू गिव द टोकन अमाउंट द नेक्स्ट डे। तो उसके पहले इवनिंग में वो जो जो घर के ओनर थे, उन्होंने हमें फोन करके बताया दैट because we wanted only for 11 months, because we knew that within 11 months our own house was getting done. So that person said that in the evening he called and he said that, madam, very sorry, but we can't go ahead with this deal because I found someone who is going to sign up for 3 years. और आप तो थ्री इयर्स के लिए करने नहीं वाले हो। मैंने बोला मैं क्यों 3 इयर्स के लिए साइन अप करूं, मुझे 11 मंथ्स के लिए ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज so magical that that time of course it was very disappointing क्योंकि हमें we were not very happy, we wanted that house, but I said okay, the universe, I'm sure, even if it is not giving me something I've asked for, I'm sure there is something better coming. तो उसके exactly in another 10 days we we saw another house. Now this house was huge, exactly the way we like it. The house was huge, it was on a ground floor, जो अभी Yes, I बॉम्बे। remember that house. यस, तो It was बॉम्बे में अभी beautiful. काफी सारे अभी ग्राउंड फ्लोर की कंसेप्ट धीरे धीरे जा रही है, और बट ग्राउंड फ्लोर के घर मिलते ही नहीं है. मिलते ही नहीं है। Will पर ये not get. ग्राउंड फ्लोर था, उसकी 2 बड़ी बालकनीज थी, एंड एंट्रेंस वाज फ्रॉम अ गार्डन। द मेन एंट्रेंस फ्रॉम द बिल्डिंग वाज somewhere else, but there was entrance from the garden. It gave us a bungalow wala feeling. And my Hmm. mother, she always liked those, ground floor. She used to feel more connected. और वो घर का हमने we signed up that deal. Also, we got a bigger space for almost the same amount which we were negotiating for the smaller house. And we were happy because we have all these pieces of furniture which are large. My both Hmm. my parents have really liked large pieces of furniture, sofa sets, dining tables. हमारे हमें ऐसे ही पहले से आदत है to live in a lot of, I always say, abundance mindset. तो हमारा सब सामान फिट हो गया उधर. It was very nice that we could fit a lot of our stuff, and the lockdown started. Hmm. Now we realized that लॉकडाउन में ग्राउंड फ्लोर पे रहना was a blessing, because I used to just wear a mask and सब्जी वाले स्ट्रीट से जाते थे, सो अरे भैया सब्जी दे दो, ब्रेड दे दो, दूध वाले, सो एवरीथिंग वाज वेरी एक्सेसिबल एज Hmm. कंपेयर्ड कि मैं अगर 20th फ्लोर पे रहती तो मुझे डेली लिफ्ट से अप डाउन करना पड़ता, और आई वुड मीट अ लॉट ऑफ पीपल. So I realized that it actually turned out to be a blessing in disguise. But because I had created that trust with the universe, even when we did not get that flat,
we realized that it was a blessing in disguise. And of course, we did an 11-month um, agreement, and which we extended for 2 months, because after 13 months in 2021, we moved into our new house, our Hmm. own house. So everything just worked out in the favor. So जब आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो, like Gabriel Bernstein says that have faith in the universe no matter what, even when you're going through something which seems very difficult, still believe that universe is working with you. ये ट्रस्ट आप जब अपनी अपनी जिंदगी में क्रिएट करते हो यूनिवर्स के साथ, you become the queen or king of manifestation. So your Very trust true. is the missing file, which is what. And Neelam, I know you were aware that when I moved, I told you about this magic कि ये कितना कितना Yeah. सुंदर तरीके से ये Yes. वर्कआउट हुआ, you Yes. know. और the last step is surrender, because surrender has been one of the biggest keys in manifestation. And not just we are not just talking it here in terms of power of subconscious mind and law of attractions, but everyone speaks about the power of surrender. And I'm sure you, Neelam, you are aware of how beautiful it is, right? Yes. So ये सरेंडर, तो ये सरेंडर है ही ऐसी चीज, जैसे हम हमें अपने गॉड के साथ होता है सरेंडर। हम करते हैं गॉड को, हम बोलते हैं कि अब आप देख लो, जस्ट यू जस्ट डू इट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, You're इट्स not doing anything. जस्ट योर पावर, यू हैव टू डू इट। Yes. तो आई जस्ट सरेंडर टू यू, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे ये पता है कि इससे बेटर होगा। Yes. तो Yes. वो ट्रस्ट और सरेंडर दोनों जब मिलते हैं, देन इट Yes. बिकम्स अ पावर। It's like, a combination of trust and surrender. आप विश्वास रखते हो और आप बोलते हो आप टेक केयर, जिसको हम कृष्णार्पण भी कहते हैं। जैसे भगवत यस। गीता में प्रभु ने कहा है दैट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन। व्हाट डज दैट मीन? यू डू योर वर्क एंड सरेंडर इट टू मी। आप अपना काम करो और मेरे पैरों में इसको यस, एंड डिटैच फ्रॉम द आउटकम, कि ये डिटैच फ्रॉम ऐसे द। ही होना चाहिए, यस। ऐसे ही यस। होगा, यस। सो डोंट डू दिस। यस, और ये बिल्कुल सही बात कही तुमने। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मीनिंग ये नहीं कि आप उसको भूल जाओ या फॉरगेट भूल करो। जाओ, एग्जैक्टली। उसके एसोसिएटेड जो फियर है, उसके एसोसिएटेड जो डिस्ट्रस्ट है, उसको डिस्ट्रॉय करो, जिसको इल्यूजन भी कहते हैं। दिस इज माया। डिलीट ऑल द इल्यूजन्स, डिटैच फ्रॉम द इल्यूजन्स, ट्रस्ट इन गॉड। और ये भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, दिस हैज बीन सेड अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। सो जैसे even in Christianity, in Islam, they all talk about surrender to God. हाँ। And like, of course, because you and I have read the Bhagavad Gita and we read that a lot, I'm giving that example. But this is the base of the universe, क्योंकि हम यही कहते हैं कि जब आप, लाइक, आई यूज्ड टू, माय मॉम यूज्ड टू टेल मी व्हेन मैं एग्जाम्स के लिए जाती थी कि पढ़ाई की है ना, अभी पुट इट ऑल इनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, उनके चरणों में रख दो, वो कर देंगे। और इसी बिलीफ को लेके मैं आज तक जी हूं कि गॉड इज वॉचिंग मी। यस। गॉड इज, गॉड knows what I want, and if things are not working out, it's for my higher good. I detach from all fears. I detach from that whole, people become codependent, people become controlling. उस सबको just let it all go. Trust that there is a higher power which is giving you something. यस। Let go of the attachment to outcome. Release all the resistance. And a beautiful concept called as divine timing is या। God's timing. Let go, let God. Allow God to help you create that in a beautiful manner. Create that flow of energy, which will make you a magnet to attracting your desires. Rather than you doing things. Of course, taking action is important, but don't be obsessed. Surrender it to श्री चरण को, सरेंडर कर दो। क्योंकि जब आप वो भगवान के, यू नो व्हाट इज द वर्ड आई कैन से, चरणों में उनको आप सरेंडर करते हो, आप बहुत मैजिक क्रिएट करते हो, बिकॉज गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, इजंट इट? ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, आई एम जस्ट इमर्स्ड इन दिस लाइन, दिस, ये वाक्य बहुत सुंदर है।
Absolutely. It's very, and there is another shloka from Bhagavad Gita, which is in the 18th chapter. 18th chapter is the last chapter, where uh, Lord says, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo moksha ishavi mast. Now, Yeah. there is the word which stood for me is sharanam. Hmm. When you surrender, and surrender and sharan are very similar sounding words. So when you surrender it to God, to a higher power, you are flowing with your desires. And I think that's when you use all this CCAATS, all the techniques, you are creating a wave of manifestation and you become unstoppable because ना आपको अनसर्टेनिटी का डर है ना आपको फियर डाउट परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप एक हायर पावर में विश्वास रखते हो क्योंकि सी मैनिफेस्टेशन इज अ गेम which is not just of um, you creating it, you are co-creating it with God. And when you co-create it with God, you are creating magic. Yes, yes. And this is how I have learned to write my prayers, Ashwini, through you, Yes, because you always make me write that I'm co-creating with you, universe. yes, yes, yes. And manifestation के बहुत सारे टेक्निक्स है लाइक हम विजुअलाइजेशंस की बात करते हैं अफर्मेशंस की बात करते हैं हम लाइक यू सेड जर्नलिंग की बात करते हैं देयर आर सो मेनी वेज बट द कोर रिमेन्स दैट यू ट्रस्ट गॉड एंड यू आस्क बिंदास पूछो मांगो आपको सब मिलेगा और Yes. अगर नहीं मिला है तो बिल्कुल आपको और कुछ बेटर मिलने वाला है तो ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है एंड आई होप मी एंड नीलम वी हैड such a beautiful time talking about this. I hope our audience too enjoys it. Yes, yes, absolutely. They are going to enjoy. Thank you so much, Dr. Ashwini Chube, my dearest friend and guide. Thank Uh, Eternally thankful to you. And yeah, so looking forward to you, audience, for your comments, your you. remarks, Yes, your thoughts about it, and definitely we will try to reply as much as we can. as Thank much you so as much. we can. Yes, and thank you, Neelam, because I always feel that with Neelam the conversation flows. तो ऑब्वियसली हमने ये टॉपिक डिसाइड करी और हमने ये सोचा कि इस पे बनाएंगे लेकिन नीलम के साथ जिस तरीके से मेरे टॉक्स हमेशा फ्लो होते हैं थैंक यू फॉर बीइंग यू थैंक यू फॉर Thank बीइंग you. दैट अमेजिंग एनर्जी Thank एंड you for यस letting me being me. अरे कितना यू नो हम एंजॉय बहुत करते हैं ये कॉन्वर्सेशंस Yes, और आई एम श्योर वो एनर्जी से भी ऑडियंस बहुत सारा एंजॉय करेंगे एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस इफ यू हैव एनी टॉपिक सजेशंस जिस पे आप हमारे ऑडियोज सुनना चाहोगे ऑन द यूनिकॉर्न कैफे ये मेरे पास तो आज तो मैं बस थोड़ी ग्रीन टी पी रही हूँ लेकिन जब भी आप कॉफी चाय वॉट एवर विथ वॉट एवर यू लाइक यू कैन जॉइन अस वॉच दिस प्लीज टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए like बिल्कुल. Neelam said, we will try and answer as much as we can. And sending you so much love, best wishes, and please subscribe if you Yeah. haven't yet, because there is so much more coming in this new year, starting from the Chaitra Pratipada, and we are looking forward to share all of that. Thank you from Neelam and thank you from me, and I look forward to hear from you. Thank you. Bye bye. Thank you.